Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Just a moment, ma'am. Good evening, everyone. I am welcoming you on behalf of our President, Dr. Shubhoshri Sarkar, Jamshedpur Sahodaya School Complex. I welcome our resource person, Purnima Menon ma'am, and all the participants to today's training program on connecting and communicating with parents. Ma'am, please start the meeting now. Yeah. Okay. Good evening to all of you. I hope you're all prepared to hear this. It's a session which is usually neglected, so that makes it all the more interesting to listen to. All right, and let me quickly share my screen. I have my presentation ready, and okay. I just want to ask you one thing. Sharing the computer audio would be important, I think, on. Uh, Let me just see if that's possible. In case there's a video that plays and it doesn't play well, I hope you let me know that it does not. Okay. So can you see the screen? Can you see me and can you see the screen? Yeah. Yes, ma'am, we can see your screen. All right, perfect. I thought now because I switched on something, my voice was not audible. It's been some time. Actually, after the offline session started, I haven't been very frequently on the online session. So a little out of hand, out of touch situation. Okay, so what we will quickly do is let me see if this works out, and then we go ahead with it. All right. I hope the screen is still visible. Then I move on to start of the session. Is it still visible? Yes, ma'am, it's visible. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much for that, ma'am. So many of you must be knowing me. I am Mrs. Purnima Menon. I am working as a principal of a school in Anand Vidya Vihar, Vadodara. Uh, the school's name is, of course, Anand Vidya Vihar. And I've been taking a lot of workshops online and offline. And this topic is one very crucial, very important, and very less explored topic. So that makes it a little more important for you to listen to it. Now, if you are school leaders or you are leaders in some capacity, say you're a subject matter expert or you are a coordinator, you may or may not come across connecting with parents, or you may come across that situation more often than the other teachers. But whatever you gathered from this session, whatever, I hope you share it with the other teachers, because as I said, this part is the most important link in our teaching chain. See, we may be excellent teachers. We are able to exactly identify what the CBSE expects out of it, how exactly should we take care of the learning outcomes and pedagogies. But what actually happens is to communicate to that, communicate that to the parents. ये parents तक पहुंचाने वाली बात वहां पे हम चूक जाते हैं. So if you are listening, just आप इसके साथ बहुत कुछ identify कर पाओगे. Believe me, the session is going to be very, how do you put, very nostalgic for you, क्योंकि शायद आप में से कई लोगों ने ये सब कुछ अपनाया भी होगा, लेकिन आपके लिए एक खुलासा जैसा होगा कि हाँ, बस हम जो कर रहे थे ठीक थे, या ये अच्छा तरीका है, हम इसको अपना सकते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा. So I hope I can make it bilingual, like I can speak in English and Hindi as well. Ma'am, are you there? Yes, ma'am. Yes. Okay. Can I make it bilingual? Is it okay, or should I be only speaking in English? I have actually no As problem. you wish, ma'am. As whatever comforts you. Okay, fine. All right. I have no objection to making it bilingual. So, fine. So let's start off with this session. And let me see. ये आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा. सुनाई दे रहा है? क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में No, ma'am, it's not audible. It's not audible. बुक्स आर स्टिल हिज एनिमीज. Okay. All right. पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो. Yes, now it's audible. इसकी हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है. जानबूझ के मिस्टेक्स रिपीट करता है. ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है. All the time asking for permission to go to the toilet. I'm thirsty, I want to do susu. Thirsty, susu. Thirsty, susu. Disturbs the whole class with his silly pranks. और आपने इसके एग्जाम पेपर्स देखे होंगे. हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले हैं. आपने इसके एग्जाम पेपर भेजे थे?
पिछले वेंसडे को पेरेंट सिग्नेचर के लिए आज तक वापस नहीं आए। They were a sight, I tell you, Mrs. Avasti. In fact, I sent a letter specially to meet you. ये देखिए, मैथ्स टेस्ट 3 into 9 is equal to 3। बस इसके बाद सारे सवाल छोड़ दिए। कौन मानेगा ये योहान अवस्थी का छोटा भाई है? मिस्टर अवस्थी, यस। वैसे भी थर्ड स्टैंडर्ड में आपके बेटे का ये दूसरा साल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। शायद इसे कोई प्रॉब्लम है। क्या मतलब? शायद वो कुछ बच्चे बदनसीब होते हैं और ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं। Okay, I hope this was audible, all of you. Can I have somebody writing down in the chat box whether it was audible? Okay. All right, what did you see in this video? In particular, आपने देखा कि किस तरह से एक बच्चे को उसके मम्मी पापा के सामने स्कूल वालों ने जलील कर दिया। जलील नहीं, एक्चुअली स्कूल वाले जलील नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ बात बता रहे थे कि आपका बेटा जो है काम नहीं करता है। उन्होंने कितनी सारी गलतियां की होंगी आप सोचिए। पहले तो बड़े भाई के साथ कंपेयर करना, रशियन लिखना, ये तो पता नहीं क्या कि बच्चे को दिक्कत थी, बट लिखा है क्या, उसको कोई लर्निंग डिफिकल्टी है कि नहीं वो पता नहीं किया। दूसरा, बच्चे को कैलकुलेशन में डिफिकल्टी है, उसके बारे में जानने के पहले उन्होंने उसके एक्सक्यूजेस बनाने के बारे में ज्यादा फोकस किया। इज द चाइल्ड एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द क्लास? क्या वो टीचर ढंग से पढ़ाती है? क्या उस टीचर ने अपने बारे में सोचा है? ठीक है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती होगी, लेकिन क्या बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है? बड़े सारे सवालों पे गौर करे बगैर what they did was they put it all onto the parents and they compared the child with the elder brother. On top of that, it's an open insult to the parents. Remember, parents, कि आपका बेटा ऑलरेडी एक साल ही रिपीट कर चुका है, क्या आप दूसरा साल भी रिपीट करना चाहेंगे? बट नाउ इमेजिन द प्लाइट। अब आप सब कुछ भूल जाइए, अगर आप उस सिचुएशन में होते, वो पेरेंट होते, तो आप क्या करते? एक तरफ आपका एक बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरा बेटा आप मेहनत कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, बट इट्स नॉट हैविंग एनी रिजल्ट and the school is threatening you that the child will now not repeat the class. It's already 1 year that your child has repeated, is not showing any improvement, and is the child is doing deliberate pranks. वो बार बार वॉशरूम जाता है, इधर उधर जाता है, ध्यान नहीं रहता, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से वो आपको बताता भी नहीं, यानी चोरी भी कर, यानी झूठ भी बोलता है। आप समझे आपका सिचुएशन कैसा होगा, कितनी दयनीय होगी। इट इज सो pathetic. Now, if that parent would have, imagine, gone back home and thrashed the kid, बच्चे को मारा, उस बच्चे में फर्क आएगा, क्योंकि उसे उस सब्जेक्ट से और नफरत होगी, स्कूल से और नफरत होगी, पेरेंट्स और स्कूल के बीच का संबंध भी पूरी तरह उजड़ जाएगा, राइट? तो इसलिए कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग जरूरी है। इन दोनों शब्द का अंतर क्या है? कम्युनिकेटिंग यानी केवल वार्तालाप, कनेक्ट करना यानी केवल वार्तालाप नहीं, उस पेरेंट के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ना जिससे कि पेरेंट आपकी बात सुने, बात समझे और उस पे गौर फरमाएंगे, उस पे अमल करना चाहेंगे। आपने जो भी तौर तरीके बताए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, पेरेंट उसके लिए आतुर हो जाएगा कि चलो ये करेंगे तो शायद मेरा बच्चा बेहतरीन परफॉर्म करेगा। यानी आप पे जो डिपेंडेंस है, वैसे तो डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन आप पे जो पॉजिटिव डिपेंडेंस है वो बढ़ेगा, right? Yes ma'am, I agree that the child will have to be given, the child will have to consult a a counselor, not a psychiatrist, a counselor, but उसको बताने का एक तरीका होता है। हम कैसे इंडिया में प्रेजेंट करते हैं कि ये बच्चा आपका स्पेशल है, वो भी सुनिए, शब्द तो सुनिए, ये कुछ बच्चे बदनसीब होते हैं, जबकि सरकार भी अब उनको स्पेशल चिल्ड्रन और दिव्यांग कहते हैं। तो क्या बदनसीब कहना चाहिए? क्या ये पेरेंट, कभी हमने सोचा हम उस पोजीशन में होते तो कैसा होता? इट इज वेरी वेरी पेनफुल।
तो हम क्या कर सकते हैं कि वो काम आसान हो जाए। अगर बच्चे को वाकई में कोई लर्निंग डिफिकल्टी है, जैसे कि डिसलेक्सिया जो इस केस में बच्चे को है, या मैथ के संबंध में डिसकैलकुलिया होता है, यानी कैलकुलेशन के टाइम भौतरा जाना, घबरा जाना, समझ में ना आना, ऊपर से ड्राइंग्स के स्केचेस या ड्राइंग्स या पिक्चर्स को ना समझ पाना, कुछ उससे रिलेटेड है डिस्ग्राफिया। अभी ऐसे कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज हो, इवन एडीएचडी कैन समटाइम्स एग्रवेट योर लर्निंग डिफिकल्टीज। तो ऐसे में अगर हम पेरेंट को बताएं कि आपका बच्चा बदनसीब है, तो कितनी बुरी बात है, बुरी बात नहीं है, कितना हताश हो जाता है पेरेंट। इससे अच्छा अगर हम इतना बता पाए कि देखिए इस बच्चे को मेरे साथ साथ और भी मदद की जरूरत है, मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ, लेकिन अगर हम इसके साथ साथ एक काउंसलर की भी हेल्प ले लें तो हम बेहतर और बच्चे से बेहतर परफॉर्मेंस दिलवा सकते हैं, करवा सकते हैं, और बच्चे को इतने क्या कहते हैं, इस अर्ली स्टेज में मदद मिलेगी तो ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं, और ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकता है। कहने का मतलब आपने एक डॉक्टर का काम किया। डॉक्टर पहले क्या करता है आपके साथ एक मानसिक संबंध बनाता है कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है और इसके बाद आप ठीक हो जाओगे। जैसे ही डॉक्टर ये संबंध आपके साथ मानसिक संबंध बनाता है, द डॉक्टर मेक्स एन इमोशनल मेंटल कनेक्ट विद यू, half your problem has vanished. Then you know I will get better because the doctor says I will get better. That's a clue to handling parents, because parents and we are connected through children. So if I say I don't want to teach your child is very difficult to teach, I cannot teach the child. So what will the parent do? Where will the parent go? Alternately, if I say, look, you will also help me, I will also help the child, together we will help the child will do better for sure. You know how reassuring it is to the parent. The parent feels really good. Yes, मेरा बच्चा जरूर बेहतर करेगा. Effective communication builds an understanding and trust to support the child's well-being and development. यानी कम्युनिकेशन ही नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से बच्चे के बारे में समझना और एक भरोसा बनना, एक ट्रस्ट का बॉन्ड बनाना, जिससे कि बच्चे की वेलबींग का क्या मतलब है, यहाँ पे शारीरिक ही नहीं, मानसिक क्या कहते हैं, सेहत, वेलबींग ऑफ द चाइल्ड प्लस डेवलपमेंट, यानी एकेडमिक डेवलपमेंट या प्रोग्रेस जो है, इनसे काफी कुछ बेहतर हो सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन से क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चों का मोटिवेशन बढ़ता है। आपसे ये होगा, आप मेरी बात मानो, आप जरूर अच्छा कर पाओगे। जैसे ही आप ऐसा बोलते हो किसी बच्चे को, उसका अपने आप मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हाँ, यस, माय टीचर बिलीव्स इन मी, आई कैन सर्टनली डू बेटर। दूसरा, थोड़ा उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, मैं सबसे कम नहीं, मैं सबसे वीक नहीं, मुझसे भी हो सकता है। इतना भी एक शब्द अगर आप बच्चे को दो, बच्चे को दिलासा दिलाओ, तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम थोड़ा बढ़ता है, उसको उस सब्जेक्ट के प्रति एटीट्यूड बढ़ता है कि उसे नफरत नहीं होती, वो भागने की कोशिश नहीं करती या करता, और उसको हासिल करने के लिए कम से कम अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। देखो, मुश्किल होगा अगर एक बच्चा बहुत वीक है मैथ वाले सब्जेक्ट में, उसको नहीं भी आता होगा, तो कम से कम एटीट्यूड तो दिखाएगा पढ़ने के लिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। प्लस उसके बिहेवियरल इश्यूज, यहाँ पे कैसा है, बच्चा बार बार परेशान करता है, वॉशरूम जाना है, तंग कर रहा है, एक्चुअली बच्चा अपनी तरफ अटेंशन केंद्रित करना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो ये सारे जो दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, उन सबका निवारण तब होगा जब आप बच्चे के साथ, बच्चे के पेरेंट के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करोगे। और कैसे? जैसे कि एक टीचर, एक डॉक्टर एक मरीज के साथ करता है। क्या करता है डॉक्टर? डॉक्टर पहले ही बोलता है ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, बस आपको मुझ पे भरोसा करना है, मैं जो कह रहा हूँ उस पे अमल करना है, और देखना यूं सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ ऐसा ही आपने बच्चे और पेरेंट्स के साथ रवैया अडॉप्ट करना है। दूसरा, कम्युनिकेशन के बाद पेरेंट्स को भी थोड़ी लगेगा, क्योंकि मेरे दोस्त या मेरे बाकी के पेरेंट्स जो हैं उनके तो बच्चा अच्छा कर रहे हैं, मेरा ही बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, तो शायद मुझ में कुछ कमी है, वो फीलिंग आ जाती है पेरेंट्स को। जब आप पेरेंट्स को दिलासा दिलाते हैं तो उनको भी लगता है कि चलो मैं भी कोई गया गुजरा नहीं हूँ, मेरा बच्चा अगर अच्छा आज नहीं कर रहा है तो हमेशा ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, देयर इज स्टिल सम स्कोप। ऊपर से टीचर जब पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन करती है तो एक रिलेशनशिप बनता है, एक बॉन्ड बन जाता है कि देखो हो सकता है, राइट? तो कब, कैसे? सबसे पहले तो
कम्युनिकेशन किस किस तरीके के होते हैं। पहली बात तो इंप्रेशन बनाना, जो कि क्रिएटेड होता है एक इंप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन होता है, जो कि जताना, या तो शब्दों से जताते हैं या तो आप उनको अपने एटीट्यूड से जताते हैं। कई अलग तरीके होते हैं। तो इंप्रेशन कैसा होता है, आपको वो बनाना पड़ता है, यानी दर्शाना पड़ता है। देयर इज नथिंग लाइक यू नॉट सेइंग समथिंग, बट आप दर्शा रहे हो कुछ। एक्सप्रेशन इज आइदर थ्रू वर्ड्स और थ्रू योर यू आर शोइंग समथिंग टू एक्सप्रेस योर कंसर्न, बट दैट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। इंप्रेशन कैसे बनाते हैं, चलो हम देखते हैं। तो हमने देखा कि दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक इंप्रेशन होता है और एक एक्सप्रेशन होता है। इंप्रेशन यानी बनाना, जताना। क्या करोगे आप, वेलकम साइन इन एथनिक लैंग्वेज, इसका क्या मतलब। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो और सभी कुछ इंग्लिश में लिखा गया है और बच्चे के माँ बाप को जरा सी भी हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ हिंदी आती है, तो अगर आपने हिंदी का भी उपयोग किया, बच्चे को क्या कहते हैं, आपका स्वागत है, या यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ शिक्षक का कक्ष है, सॉरी आवाज नहीं आ रही। इज इट नॉट ऑडिबल टू एनीबडी और इज इट ओनली मी, इज इट नॉट ऑडिबल एट ऑल? It's audible, ma'am. ओके ओके, somebody wrote that, that's why, okay fine, alright। so आप लिख सकते हैं कि ये शिक्षक का कक्ष है या जो स्टाफ रूम जो भी है उसका लोकल लैंग्वेज, तो पेरेंट्स को समझ आएगा और उनको लगेगा कि चलो हिंदी के भी मायने हैं स्कूल में। या अगर आप उस एरिया में बहुत सारे बंगाली रहते हैं, जैसे आप यू आर इन द बिहार जोन, so you have a lot of Bengalis, or maybe you have a lot of Assamese, or you may have a lot of Hindi speaking people. You may even have, if it's a colony, if it's a township, and say you have a lot of South Indians, you can even write it in that language. Multiple languages में आपका स्वागत है, ये kindly go to this room to meet the teacher, this is the principal's room। अलग अलग भाषाओं में आप लिखोगे तो पेरेंट्स को वेलकम फील होगा। और हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखिएगा, तो दे विल फील लाइक कमिंग एंड टॉकिंग टू यू। All right. Yes, ma'am. That was Tare Zameen Par ka clip. The movie spoke about dyslexia. All right. So now we come back to the session. एक तो आपके चेहरे पे एक जो रौनक के साथ अगर आपने एक स्माइल दिया, राइट, मुस्कुराहट। दूसरा क्लीनलीनेस, आपका रूम, स्कूल का ओवरऑल क्लीननेस, उसी के साथ एक इंप्रेशन बन जाता है पेरेंट के दिमाग में कि भाई ये काम से मतलब रखते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, काम बड़ी बड़ी बातें बोलते नहीं, केवल बोलते ही नहीं, करते भी हैं। सो क्लीनलीनेस मेक्स अ बिग इम्पैक्ट, ये आपके स्कूल के लिए भी है और आपके पर्सनल क्लासरूम के लिए भी है। दूसरा, अपने क्लासरूम में हमेशा बच्चों का काम रखिएगा। उससे क्या होता है, पेरेंट का भले ही कुछ सिंपल सा काम हो, बट पेरेंट को लगेगा चलो मेरे भी बेटे के काम को सराहा गया है, बेटी के काम को सराहा गया है। माई चाइल्ड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द क्लास एंड द पेरेंट इनडायरेक्टली टेक्स प्राइड इन इट। दूसरा, कस्टमर फ्रेंडली स्कूल, राइट फ्रॉम द रिसेप्शन टू द टीचर, मतलब प्योन से लेके फ्रंट ऑफिस से लेके टीचर्स, गाइड टीचर्स, को स्कॉलास्टिक डिपार्टमेंट, एवरीबडी शुड बी फ्रेंडली। कोई सहायता पूछता है तो उसको सहायता देने की उत्सुकता, तत्परता रहनी चाहिए। एक ऐसा स्कूल जहां सब कोई हंसते हो, हंसकर सबकी सहायता करते हो, उसे कस्टमर फ्रेंडली स्कूल कहा जाता है और उससे पेरेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, एक माहौल, एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट। एक टीचर दूसरे की बुराई ना करे, एक टीचर अगर दूसरे टीचर के गैर हाजिरी में उसकी बुराई ना करके उसको बचाने की कोशिश करे, यानी उसके लिए कुछ अच्छे दो शब्द बोलें, पेरेंट को दिलासा दिलाएं। You know, there are a lot of ways in which this can be done. That's the overall environment of the school. A very positive, constructive environment. Right? अब एक्सप्रेशंस पे आते हैं, यानी एक्सप्रेशन यानी जहां पे या तो मौखिक या लिखित रूप में आप एक्सप्रेस कर रहे हो। या तो ये एक तरफा होता है, यानी आप पेरेंट को सुना रहे हो, या पेरेंट भी आपको बताने के लिए कोशिश करते हैं और आप सुन भी पाते हो और आप वापस जवाब भी दे पाते हो। सो इट्स टू वे थिंग। और तीसरा है टेक्नोलॉजी। आजकल है मेल टेक्निक है, व्हाट्सएप है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, ईआरपी है, और देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। अब वन वे टेक्नोलॉजी क्या है? रिटर्न यानी जो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का क्या मतलब है? जब आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हो, डायरी में लिखते हो, तो किस प्रकार आप उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाएं। एफिशिएंट यानी आप तुरंत बगैर समय का लॉस आपने काम कर लिया, तो उसको एफिशिएंट कहलाया जाता है। और इफेक्टिव, ऐसा एक मैसेज जो गोल गोल ना घूमकर सीधी बात पर आ जाए, तो पेरेंट को बात समझ में आती है। एक है न्यूज़लेटर,
कई आजकल, पहले तो बहुत मुश्किल से बनता था न्यूज़लेटर्स, आजकल तो हर क्लास में एक न्यूज़लेटर बन सकता है। लेकिन इतना कोशिश ज़रूर कीजिए कि अगर हर क्लास से भी एक न्यूज़लेटर जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास 6-8 की टीचर हूँ मान लीजिए। मैं अपने क्लास का न्यूज़लेटर हर 2 हफ्ते या है 1 महीने में बनाना चाहती हूँ। एक सिंपल सा कैनवा, टेक्नोलॉजी कैनवा पे एक ही पेज साइज़ का, यानी पूरे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल ने बताया होगा कि कैनवा में बनाना 4 पेज का होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ इतना होना चाहिए, स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए, साइज़ ऐसा होना चाहिए, इतने ही पिक्चर्स होने चाहिए और ऐसे कुछ आर्टिकल्स होने चाहिए। यानी 1-2 आर्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे क्लास के जो अचीवमेंट्स हैं, मेरे बच्चों ने जो काम किया उसको सराहते हुए पिक्चर्स होने चाहिए। तो लगभग इसी फॉर्मेट में, चाहे वो 6 ए हो या 8 बी हो या सी हो, कुछ ऐसा ही जाएगा, सिमिलर फॉर्मेट। देन आई कैन हैव न्यूज़लेटर्स फ्रॉम एवरी क्लास, अ सिंपल कैनवा, सिंपल न्यूज़लेटर, सेम पेज, सेम साइज, सेम कंटेंट, मैटर, पिक्चर्स। और उसमें क्या है, मैं अगर हर 2 हफ्ते में या हर 1 महीने में या हर 2 महीने में अपने बच्चों का काम बच्चों के माँ-बाप को भेजूँ, बच्चों के माँ-बाप को अच्छा लगेगा कि टीचर हमारे बच्चों का इतना अच्छा ख़्याल रखती है और हमारे बच्चों को इतनी सराहती है या इतना ज़्यादा प्रमोट करती है कि हमारे बच्चे उनके अधीन काफ़ी खिल रहे हैं। यानी अंडर द टीचर्स गाइडेंस, द चिल्ड्रन आर रियली डूइंग वेल, फ्लावरिंग वेल। ये एक अच्छा तरीका है। दूसरा, स्कूल के तरफ से जो होमवर्क जाता है, तो नोटबुक में ख़ास ध्यान दीजिए कि जिन बच्चों को ख़ास ज़रूरतें हैं, जैसे कि अभी हमने देखा योहान अवस्थी, अ ईशान अवस्थी का जो सॉरी, ईशान अवस्थी के पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपका बच्चा ज़रूर स्पेशल है। तो ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए एक्स्ट्रा राइटिंग के लिए हो सकता है आपके पास एक्स्ट्रा 2-3 वर्कशीट्स हो, आपने सालों से जमा किए हुए वर्कशीट हो, एक्सक्यूज़ मी, या आप किसी बच्चे को नोटबुक की सहायता देते हैं, तो उस नोटबुक में एक थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क, या उस बच्चे के लिए नोटबुक है, आप एक मैसेज लिख के दें। बाकी बच्चे अपने आप से लिख देंगे। आप बोर्ड में लिखेंगे, बच्चे कॉपी कर लेंगे कि मेरा आज का होमवर्क ये है, वो डायरी में कॉपी कर लेंगे। लेकिन इन बच्चों के लिए थोड़ा खास ध्यान, बच्चों को उन बच्चों को बोलिएगा लिखिए और मैं साइन करूँगी। तो क्या है, पेरेंट को टीचर के साइन के साथ आया है तो ज़रूर कुछ खास बात होगी। तो कम्युनिकेशन का बॉन्ड बनता है। तीसरा, डायरी या एल्मनैक, उसमें जभी भी आप पेरेंट्स को लिख के भेजें, तो मिस्टर सरनेम के साथ या मिस या मिसेस, आजकल सिंगल पेरेंट्स भी बड़े सारे होते हैं, तो मिस्टर, मिस, मिसेस जो भी लिखना चाहे उसके साथ फॉर्मल एड्रेस दें, नाम लेके नहीं और डायरेक्ट मैटर पे नहीं, एक प्रॉपर एड्रेस दें, मिस्टर सो एंड सो, दिस इज टू टेल यू दैट दिस हैपेंड, ऐसा, राइट। और फिर एक रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड बहुत ज़्यादा अहम डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक परमानेंट डॉक्यूमेंट है। मेरे पास भी मेरे बचपन से लेके मेरे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के रिपोर्ट कार्ड्स हैं। इनफैक्ट नर्सरी के भी हैं, नर्सरी जूनियर। वो एक परमानेंट रिटन इवैल्यूएटिव रिपोर्ट होता है। रिटन यानी ज़िंदगी भर बच्चा उस टीचर को याद करेगा जिसने उसमें लिखा था। राइट। दूसरा, इवैल्यूएटिव रिपोर्ट होता है। तो जब भी हम लिखते हैं तो बच्चे के बारे में 2-4 खूबियां लिखेंगे, बच्चा वो जिंदगी भर याद करेगा कि मेरे क्लास 5 के टीचर ने मेरे लिए लिखा था कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ी ज्यादा बातें करती हूँ और मुझे अपने बातों पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट बिकम्स अ रिकॉर्ड फॉर द चाइल्ड। तो एंड सेकेंडली, इंपॉर्टेंट लाइन है वो आखिरी लाइन, रिपोर्ट कार्ड जो है सबसे पहला कम्युनिकेशन कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट कार्ड मिलने पे पेरेंट को पता चला, अरे मेरा बच्चा तो फेल हो रहा है, यानी सब्जेक्ट में अच्छा करता ही नहीं है, ये तो मुझे आज पता चला, 6 महीने के बाद, पहले टर्म के बाद। बिल्कुल नहीं, उसके पहले ही पेरेंट्स को बताया जाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक है, आपकी जरूरत पड़ेगी इसमें, मैं भी इस पे काम करूंगी, साथ मिलकर काम करेंगे तो बच्चा फर्स्ट टर्म के पहले ही बेहतर हो जाएगा। तो रिपोर्ट कार्ड में जो रिपोर्ट जाएगा वो ऐसा ही नहीं होगा कि द चाइल्ड हैज टू द चाइल्ड हैज नॉट डन वेरी वेल इन द सब्जेक्ट एंड शुड बी वर्किंग हार्डर। वो बच्चे पेरेंट्स के लिए पहला कम्युनिकेशन कभी नहीं होना चाहिए। देन फोन कॉल्स। फोन कॉल्स हो सकता है आपको कॉल नहीं करना हो तो आप मैसेजेस दे सकते हो, आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपको एक ही बार ग्रुप बनाना है, लेकिन पेरेंट को लगेगा कि आपने इंडिविजुअल मैसेज दिया है, राइट। आप मैसेजेस दे सकते हो, कॉल्स दे सकते हो, एसएमएस दे सकते हो। स्कूल एसएमएस ग्रुप होता है, ईआरपी सिस्टम होता है, ईमेल भेज सकते हो। ईमेल एक रिटन रिकॉर्ड रहता है कि आपने क्या एक्शन लिया किसी मामले पर, किसी मसले पे, राइट। तो
वो भी एक रिकॉर्ड रहता है, तो वो आप वैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर पेरेंट भी चाहता है कि आपसे कम्युनिकेट करे तो दैट्स अ फास्टर वे ऑफ डूइंग इट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये वैसे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स नहीं करते लेकिन बहुत अच्छा तरीका था, सो आई थॉट आई शो इट यू। इट्स कॉल्ड अ लिटरेसी बैग। लिटरेसी बैग मतलब साल की शुरुआत में अगर मैं लिखूं कि इस साल के अंत तक मेरा ये श्रम होगा, परिश्रम होगा, मैं परिश्रम करूंगी कि मेरे क्लास के बच्चे इतना इतना लिख पढ़ पाए और इतना इतना कर पाए, इतने सारी चीजें हासिल करें, मेरी ये जवाबदारी होगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं चाहूंगी कि आपके साथ मिलकर इस साझेदारी में हम अपने बच्चों पे इतना काम करें कि बच्चा जरूर खिल उठे। ये एक ग्रेड लेवल एक्सपेक्टेशन साल की शुरुआत में अगर पेरेंट्स को दिया जाए, आपके पास मार्च का टाइम होता है, आप जानते हो किस क्लास को आपको दिया जाने वाला है, तो एक छोटा सा रिकॉर्ड जो है ग्रेड लेवल एक्सपेक्टेशन अगर ईआरपी में भी कॉपी पेस्ट करके भेजा जाए। मेरा रूल नंबर 1 है, मैं होमवर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ, बच्चे घर पे क्या करते हैं और बच्चे वो उसको कैसे काम करके लेके आते हैं उस पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से चेक करने की कोशिश करती हूँ। राइट, यू वेरी राइट, नेवर टॉक टू पेरेंट्स इन एन अब्यूजिव मैनर। राइट, सो मैं कैसे उस पर काम करती हूँ। दूसरा, मैं कोशिश करूंगी कि साल की शुरुआत के पहले 3 महीने के अंदर ही बच्चे में ये अंतर, ये चेंजेस आए और 6 महीने के अंदर बच्चा ये कुछ कर पाए। इसके लिए मैं आपकी साझेदारी चाहूंगी, आपका सहकरण चाहूंगी, आपसे आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप इस एरिया में मेरा हेल्प करें। साल के शुरुआत में ही अगर हमने लिख के भेजा ना पेरेंट को, फिर हम पेरेंट को भी याद दिला सकते कि मैंने तो आपसे हेल्प मांगी थी, थोड़ा और हेल्प आपसे मिल जाता तो थोड़ा और बेहतर काम कर लेते। लेकिन अब भी समय नहीं गया, अब भी हम काम कर सकते हैं। कभी भी पेरेंट को हताश न कीजिए। पेरेंट आपके लिए हर मर्ज की दवा ढूंढते हुए आता है। राइट, सो यहाँ मर्ज की दवा आपको। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन तो आपने कर लिया। अब टू वे कम्युनिकेशन होता है जहां डायलॉग होता है। हम डायलॉग केवल शेयरिंग कंसर्न्स के लिए रखते हैं, यानी बच्चे में ये तकलीफ है, हमें काम करना है। हम कभी कोई बच्चा कुछ जीत के आया हो तो कभी डायरी में लिखा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, ही हैज वन दिस। अगर ये लिख के भेजें, थोड़ा टाइम निकाल के भेजें, जिसको भी लगता है कि ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, मान लीजिए, आप मानोगे नहीं कि बहुत बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि पेरेंट आप पे फिर जान निछावर करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे बच्चे की खामियां ही नहीं, काबिलियत पे भी टीचर ध्यान देती है। तो फोन कॉल, मेक अ फोन कॉल टू से आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट ये बच्चे ने ये रिजल्ट, उसको ये अवार्ड मिला है या ये प्राइज मिला है, आई एम सो हैप्पी। इससे क्या होता है, आप पेरेंट में एक एलाई आपको मिल जाता है। एलाई वो होता है जो आपको जरूरत आने पे सपोर्ट करे, दोस्त नहीं। एलाई दोस्त कभी नहीं होते, पेरेंट्स कभी दोस्त नहीं होते, लेकिन आपके जैसे आपको एलाई एक 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 मिशन में आपको सपोर्ट देने वाला इंसान हो जाता है। दूसरा, पीटीएम में केवल नेगेटिव ही नहीं, अच्छी बातें भी डिस्कस किया कीजिए, यानी बच्चे को पूर्ण रूप से कवर कीजिएगा, उसके स्ट्रेंथ्स उसके वीकनेसेस दोनों डिस्कस कीजिए। तो मुझे याद है जब मैं रिपोर्ट कार्ड में कमेंट लिखती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा बच्चा बहुत अच्छा है, इसमें ये है काबिलियत, उसमें ये खूबी है, ये है, मगर यानी however, comma, the child needs to work on his time management and should be doing more practice in the subject। तो शुरुआत में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दी है कि पेरेंट्स खुश हो चुके हैं। अब जब मैं कमियों के बारे में डिस्कस करती हूँ तो पेरेंट ओपन माइंडेडनेस के साथ बच्चे के उस पे भी काम करने की कोशिश करते हैं, ना कि मैंने पूरे कमेंट में योर चाइल्ड, dear parent, kindly note your ward has not been studying the entire term, has not been doing well, so this is you have to really work hard। आप पेरेंट को दोषी ठहरा रहे हो कि बच्चा काम नहीं कर रहा है, पेरेंट उसको अपने ऊपर अटैक मानता है। इससे अच्छा है हमेशा पॉजिटिव से चालू कीजिए और उसके नेगेटिव्स को ऐसे शुगर कोट करें कि पेरेंट को लगे कि है मुश्किल लेकिन मैं इस पे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसलिए सोलर टेक्निक बहुत जरूरी है। व्हाट इज द सोलर टेक्निक? स्क्वायर पोस्चर, यानी एक कॉन्फिडेंट पोस्चर, आपके हाथ दोनों आपके फोल्ड और झुके हुए ना हो, रिलैक्स पोजीशन में हो, आई कांटेक्ट बनाए रखे पेरेंट के साथ। अगर आपने नजरें चुराने की कोशिश की इधर उधर तो उससे पेरेंट को लगता है कि ये टीचर कॉन्फिडेंट नहीं है, झूठ बोल रही है। दूसरा, पेरेंट की तरफ लीन मत कीजिए, वो डराने के बराबर है। एक ओपन पोजीशन रखिए, ऐसा नहीं कि मैंने हाथ बांध के रखे तो मैं सुनूंगी नहीं आपकी बात। ऐसे पोजीशन रखिए कि पेरेंट भी आपकी सुने। तो स्क्वायर पोजीशन का मतलब है कि आप
पेरेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने मुट्ठी बांधा है या अपने हाथ बांध के रखे हैं, इसका मतलब मैं नहीं सुनने को तैयार हूँ, मैं हठीली हूँ, मैंने जो कह दिया बस। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक रिलैक्स पोजीशन, आप ऐसे टेंशन में, आपने बहुत सारी बार आप क्लिक किया अपने नकल्स को, या आप लीन करते रहे, दीज आर ऑल एक्शंस व्हिच बिट्रे योर कॉन्फिडेंस. And secondly, the important thing is that it also becomes very pressurizing on the parent. The parent starts feeling that this teacher is not an open person, is very scaring. She's very intimidating, and also she's not making an eye contact. So I'm sure she's lying. There is something that she's hiding. What is the communication with technology part? It is innovative and it is time efficient. That means it's a new way of doing it, plus it's very efficient. How can you do it? You can have classroom में phones. हमारे यहाँ नहीं होते, इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स में क्लासरूम्स के अंदर फोन्स नहीं होते, बट अगर हो तो आप वहां से कॉल कर सकते हो या कनेक्शन करवा सकते हो मेन लाइन के साथ. वॉइस मेल्स होते हैं, वीडियो कॉल्स होते हैं. आई विल टॉक टू यू सर आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर. प्लीज गिव मी टाइम टू फिनिश इट ऑफ, otherwise we'll have to abort it midway. So video and radio announcements होते हैं. You can always make a radio podcast, or you can make an announcement. Voice messages भेज सकते हैं, video messages भेज सकते हैं कि आपको मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ कि बच्चा पेपर कैसे लिखना चाहिए. तो एक वीडियो आप लेकर बच्चे को स्टेप समझाएंगे कि पेपर आपके हाथ में जिस दिन मंडे से पेपर चालू होने वाला है, बच्चे के हाथ में जैसे ही आंसर शीट आता है, पहले पेज में ये भरना है, ये भरना है, ये भरना है, ये एक वीडियो बनाकर आपने घर में भेजा, तो माँ बाप भी जानते हैं अच्छा इस वीडियो के हिसाब से बच्चे को ट्रेन किया जा सकता है. राइट. सेकेंडली, स्कूल का भी एक वेबसाइट होता है, क्लास का भी एक वेबसाइट अपना बन सकता है, जहाँ पे आप अपना होमवर्क, इवेंट्स, कैलेंडर पूरे साल का और डेट शीट लगा के रख सकते हैं. ये ईआरपी में भी होता है. आपका स्कूल एक वेबसाइट सिस्टम कैरी करता होगा, उसमें भी डाल सकते हैं. स्कूल क्लास का भी वेबसाइट होता है. बड़े सारे क्लास स्कूल इतने ज्यादा इवॉल्व होते हैं कि उनका खुद का क्लास का भी वेबसाइट होता है. तो पेरेंट्स वहां पे भी जाकर इवेंट क्या क्या है, आई एम कमिंग टू कनेक्शन मैम, इवेंट क्या क्या होता है, होमवर्क क्या क्या होता है, सारा डेटा दे सकते हैं. यानी टेक्नोलॉजी जो है बेटर ऑडियो विजुअल अंडरस्टैंडिंग में सहायता देती है. और पेरेंट्स, खास तौर से उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों में सीरियस डिसेबिलिटीज या सिवियर डिसेबिलिटीज होती है, जैसे जो लिखने में कमी रखता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज नॉट वेरी गुड, इज डिसलेक्सिक. फॉर एग्जाम्पल इसी वीडियो क्लिप में ईशान अवस्थी जो है लिखता ही नहीं है, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, डायरी में वो क्या नोट लिखेगा? जब वो नोटबुक पे काम नहीं करता तो डायरी में वो कमेंट लिखेगा जो, या वो रिपोर्ट लिखेगा जो टीचर ने दिया है? नहीं लिखेगा. तो ऐसे बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल कमेंट देंगे तो आवाज नहीं आ रही. संतोष कुमार सर कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है. इज माय वॉइस, इज एम आई ऑडिबल? Yeah, am I audible? Can somebody just tell me that quickly? Yeah, okay, thank you, I got it. All right, so technology में से क्या होता है, बेटर ऑडियो विजुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर पेरेंट्स स्पेशली द वंस विद सिवियर डिसेबिलिटीज. जैसे अभी ये बच्चे ईशान अवस्थी का ही देख लीजिए, उसमें डिसेबिलिटी है. तो अगर टीचर ने एक ऑडियो विजुअल एक वीडियो बनाया और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की और बताया कि पेपर ऐसे लिखा जाता है, ईशान को ये हेल्प की जरूरत है, ये करके अगर भेजा जाए तो टीचर भी कुछ, पेरेंट भी कुछ मदद कर सकता है. अब कम्युनिकेशन में मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है? सबसे पहली बात तो इनविजिबल डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल्स. ये स्कूल है, स्कूल में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, स्कूल से बच्चे को निकाल देंगे. कोई रूल नहीं है, लेकिन एक डर रहता है पेरेंट को स्कूल के प्रति. एक वो होता है. दूसरा कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से. जैसे कल्चरल डिफरेंसेस में क्या होता है, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चियों को भेजते हैं, बच्चा है ना, हमारा बेटा है तो हम जरूर इंटरफेयर करेंगे, बेटी हो तो पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट. दूसरा भाषा में प्रॉब्लम होता है. अभी मुझे केवल गुजराती आती हो, मैं गुजरात में रहती हूँ, मुझे केवल गुजराती आती है और मेरे स्कूल में, मेरे बेटे के स्कूल में केवल सब इंग्लिश में बात करते हो, तो मैं झिझक कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे वो वेलकम फील नहीं होता. उस स्कूल में सब मुझे इंग्लिश सुनाकर मुझे छोटा महसूस कराते हैं. तो कल्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि सबको वेलकमिंग फील हो, ट्रेडिशनल ऐसा होना चाहिए. तो कल्चर और ट्रेडिशन की वजह से कई बार बैरियर आ जाता है दरमियान. राइट. कम्युनिकेशन गैप कैसा होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन गैप. हमने कह तो दिया, लेकिन हमने क्या इफेक्टिव बात की जिससे कि पेरेंट को समझ में आए, उसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन. पर आधे से ज्यादा टाइम हमारे कम्युनिकेशन में गैप रह जाता है. मैंने लिखा तो आपने साइन नहीं किया, तो आपने 2 दिन देखा कि बच्चे ने साइन नहीं किया, यानी पेरेंट ने पढ़ा ही नहीं है, तो कोई और तरीका लगाते पेरेंट को पता करने के लिए, बताने के लिए. या
पेरेंट को एक बार ऐसा सिचुएशन के बाद बोलना पड़ेगा कि भाई आपको मैं डायरी में नोट ले रही, तो आप रोज डायरी खोल के देखो। लेकिन कुछ एक तरीका अपनाया जाना चाहिए ताकि गैप ना रहे। ये जो नीचे लिखा गया है वो कई स्कूल्स में किया जाता है, कई स्कूल्स में नहीं करते। होम टू होम विजिट, अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसके घर में कोई तकलीफ आ गई है। अगर आप रूरल एरिया में, तो कई बार क्या होता है, लड़कियों की शादी हो जाती है या लड़कियों को एक क्लास के बाद आगे भेजते नहीं है। तो अगर आप होम टू होम विजिट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चे के घर के ट्रेडिशंस की वजह से बच्चे को नहीं भेजा जा रहा, या घर में शादी है तो 1 महीने तक बच्चे को नहीं भेजा जाता। पेरेंट्स को तो अहमियत नहीं होती है स्कूल और स्कूल के एग्जाम्स के लिए, लेकिन टीचर्स को तो होगी। तो टीचर्स घर में जाकर बच्चों को, पेरेंट्स को बता सकते हैं कि भाई आपके यहाँ कोई त्योहार होगा या कोई क्या कहते हैं, कोई शादी वगैरह कोई होगी बात, लेकिन बच्चे की पढ़ाई ना मिस करवाएं। दूसरा, हर पेरेंट को आपसे मिलने का मौका मिलना चाहिए। तो पीटीएम में टाइम नियुक्त करें। केवल 3 मिनट बात करेंगे या 4 मिनट आप मुझसे बात करेंगे और आप एक पन्ने में लिख के आएंगे आपको मुझसे क्या पूछना है। लेकिन आप फजूल की बातें या बेकार की, यानी बहुत सिंपल सी बातें, जैसे मेरा बच्चा खाता नहीं है या मेरा बच्चा टाइम पे सोता नहीं है, तो उसमें टीचर क्या कर सकती है। ऐसे सारे सवाल ना लेकर पढ़ाई से पढ़ाई को कनेक्ट करते हुए जो बातें हैं वो करके लेके लिख के आइएगा, तो मैं आपको आई कैन अटेंड टू यू। सेकेंडली, प्रेजेंस ऑफ द चाइल्ड इन द पीटीएम होना चाहिए कि नहीं, ये आप सोचिए। अगर बच्चा साथ में है तो बच्चा सुन लेगा आप पेरेंट को क्या सुझाव दे रहे हो, और अगर आप नहीं चाहते कि बच्चा वहां हो तो इंश्योर कीजिए कि बच्चे के लिए वो पेरेंट को ऑलरेडी पहले से पता चले। अब कुछ और स्ट्रैटेजीज जो बहुत जरूरी है, प्लीज जरा खुल के बात कीजिए, देखते ही हंसिए, और हर चीज पे पॉजिटिव जवाब देंगे तो पेरेंट आप पे भरोसा करेगा, क्योंकि आपके वार्मथ, आपके खुलेपन, आपके पॉजिटिविटी से उस उनमें उनको आप पे भरोसा करने की इच्छा रहेगी। दूसरा, कम्युनिकेट हमेशा कीजिएगा, बीच बीच में कीजिएगा, ताकि ये पहली बार और आखिरी बार नहीं होना चाहिए, साल की शुरुआत में साल के अंत में। और उस तरीके से कीजिए कि पेरेंट्स को सूट करे। मैंने आपको बुलाया था लेकिन आप सुबह के 10 बजे बुलाएंगे, कई सारे पेरेंट्स नौकरी में जाते हैं, उनको छुट्टी लेके आना पड़ता है। तो कोई ऐसा टाइम डिसाइड कीजिए कि पेरेंट को छुट्टी लेके आने की जरूरत ना पड़े, पेरेंट आ भी पाए, आपको भी नुकसान ना हो। तो उन सारे तरीकों को अपनाएं जिससे पेरेंट को लगे कि ये स्कूल हमारे जरूरतों का भी ध्यान रखता है। और दूसरा, पेरेंट्स को अहम फील करवाइए, उनको उनको लगना चाहिए कि हाँ, हमारा भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और स्कूल मानता है कि हमसे भी काफी कुछ हो सकता है और हमारे सहकरण के साथ ही बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। अक्नॉलेज देयर इन्वॉल्वमेंट, जब भी कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है तो पेरेंट को जरूर बोले कि आपके तो इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे एक पेरेंट हो, आप ही की वजह से ये कुछ हुआ है, हमारा भी इन्वॉल्वमेंट और आपका इन्वॉल्वमेंट, हमें खुशी है कि हम दोनों ने मिलकर काम किया। केवल अपने आप के लिए कॉम्प्लीमेंट ना ले, सवाल पूछें, और ना केवल सवाल पूछें, कभी हमने उनको बोला है, हम बोलते रहते, कभी हमने उनसे पूछा अच्छा घर में कोई तकलीफ है, कोई घर में कोई आके रह रहा है कुछ दिनों से, बच्चे पे ध्यान नहीं है आपका, कुछ हुआ है क्या। पूछिए सवाल, और सुनने की आदि रखें। हम हमेशा बताते रहते हैं, सुनते कम है, पेरेंट की भी बात सुनिए। हाँ, टाइम होता है, कम होता है, अगर कोई पेरेंट बोलता है मुझे आपसे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, तो थोड़ा सा हटके अलग अलग सा टाइम देंगे तो पेरेंट के लिए अच्छा रहेगा और आपका संबंध अच्छा रहेगा। Am I audible? Am I audible? Can somebody write yes? Because there are some teachers who have written, okay, thank you, Shruti ma'am, because some of you are saying that it's not audible. So maybe you can check your internet connection at your end. और इसमें आखिरी स्लाइड, आखिरी पॉइंट है कि डोंट मेक अजम्पशंस। ये है ना, आरटी बच्चा है तो जरूर इसके माँ बाप नालायक होंगे, या ये बहुत स्मेल करता है, नहा धो के नहीं आता, हो सकता है बहुत पैसे वाले घर का लड़का हो लेकिन माँ बाप को देखने का टाइम नहीं है इसलिए नहा धो के नहीं आता हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल गरीब घर से है या जो भी है। यू नो, वी मेक अजम्पशंस, ऑल दैट शुड नॉट बी देयर, नेवर मेक अजम्पशंस। कुछ और डीपर स्ट्रेटजीज क्या है? बी प्रोएक्टिव, प्रॉब्लम आने तक रुकिए मत। टेक्नोलॉजी है आजकल, मेल कर सकते हैं, ईआरपी में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जल्दी से प्रॉब्लम को सोचकर उसका निवारण सोचें। हर चीज, जब भी पेरेंट कुछ कहता है तो पर्सनली मत लें, क्योंकि वो पेरेंट आपसे नहीं, उस टीचर को बोल रहा है जो टीचर के स्थान में है। डी एस्केलेट करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो हो सकता है वो आप पे डालने की कोशिश करें। आप उसको पर्सनली ना लेकर सिचुएशन को डी एस्केलेट करें। पहले बोले, पहले आप शांत हो जाए तो ही मैं आपकी बात सुन सकती हूँ,
अब हम दोनों इसका एक तरीका निकालते हैं। इसके पहले आपने मेरे बारे में ऐसे कैसे कहा, आप कैसे कह सकते हो, मैं तो टीचर हूँ, यू आर सो डिसरिस्पेक्टफुल, ये सब करके हम करेंगे तो बात बिगाड़ेंगे हम। सो सबसे पहले टेंशन डी एस्केलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स भी मजबूर है, पेरेंट्स हताश हैं, उनसे एक नहीं संभाला जाता, आप तो 40-50 को संभालते हैं, आप अपने आप में एक हीरो हैं या हीरोइन है। लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि आप एक की बात कर रहे हैं, मैं 50 को संभालती हूँ, 40 को संभालती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बात सुनिए, ना आप गलत है ना मैं गलत हूँ, लेकिन थोड़ा उसको डी एस्केलेट करें, टेंशन को डी एस्केलेट करें। दूसरा, कभी कभी पेरेंट्स को एडवाइस भी पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर बच्चा घर पे, क्या ये करता है बच्चा घर पे, ये यहाँ पे अटेंशन की कोशिश, अटेंशन लेने की कोशिश करता है, घर पे भी करता है, तो आप वहां क्या करते हो, जरा मुझे बताएंगे, ताकि मैं भी उससे सीखूं और मैं भी कुछ करने की कोशिश करूं। दूसरा, कुछ भी इवेंट हो तो अपने पेरेंट्स को स्कूल बुलाएं, उनको बताएं कि क्या क्या हो स्कूल में, क्या क्या आप करते हो, और पेरेंट्स से भी पूछें कि आपके साथ कैसे होता है, तो आप क्या तरीका अपनाते हैं, तो मैं भी जरा स्कूल में तरीका अपनाऊं। और थोड़ा बहुत तरीका टीचर जो बताती है वो पेरेंट भी घर पे तरीका अपना सकता है, यानी 2 वे हो सकता है, ताकि बच्चे को मिलकर हेल्प मिल जाए। पेरेंट्स को कम्युनिटी प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व कीजिए, स्पोर्ट्स इवेंट्स में, फेस्टिवल्स में, कम्युनिटी एक्टिविटीज में उन्हें बुलाएं। इसलिए रेड अक्षरों में लिखा है, इट कॉल देम अस नॉट देम, वो अलग मैं अलग, ऐसा नहीं, हम, वो नहीं हम। आपके बैटल्स को आप चूज करें, यानी शुरू से ही झगड़े पे ना उतराए। हाँ, अगर पेरेंट वाकई में बदतमीजी से सुनने की कोशिश नहीं करता है, तो बात को तब डी एस्केलेट करके बाद में सुलझाने की कोशिश कीजिए, ठंडा कीजिए पहले। पर अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बोलते हैं कि देखिए पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है मैं मानती हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन आप मेरी बात तो सुनेंगे, उसके बाद आप अपने रास्ते लेके आ सकते हो। लेकिन पहले से आपने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की और आपने पेरेंट को गलत दर्शाया, पेरेंट भी आपके साथ झगड़ा करके, वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और अगर कुछ गलत होता है तो एडमिट कीजिए, आई एम सॉरी, आई नो आई शुड नॉट हैव डन दिस बट आई विल ट्राई। जैसे आप सॉरी बोलते हैं, पेरेंट भी सॉरी हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पेरेंट टीचर सॉरी बोले, क्योंकि आपने मान लिया है। अब पेरेंट भी लगता है अब क्या करूं, अब तो टीचर ने मान लिया है, अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती या मैं बोल ही नहीं सकता। तो टीचर पेरेंट भी फील करता है कि यार ये नहीं चाहिए था, उनको उनसे सॉरी बुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, राइट। दूसरा, we don't need children to do this, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमेशा सॉरी बोले। थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी चलता है इस मामले में, हम सॉरी बोलेंगे तो काम जल्दी हो जाता है। और कुछ चीजों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, हम पैसा भी दें, समय भी दें। यस ऑफ कोर्स पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे, पेरेंट्स बहुत कोई फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, हम पैसा भी दें समय भी दें, लेकिन फिर भी उनसे बच्चे नहीं कंट्रोल होते। कंट्रोल कौन करता है, आप करते हो। तो आपके पास एक हायर हैंड है, अपर हैंड है, राइट। हाँ, पैसा आप देते हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसे से बच्चा अपने आप घर पे नहीं पढ़ता। आप बच्चे को क्यों स्कूल भेजते हो, ताकि वो तहजीब सीख जाए, तमीज सीख जाए, डिसिप्लिन सीख जाए। तो उसके लिए आपको मेरा साथ देना ही होगा। पैसे से डिसिप्लिन नहीं आता, डिसिप्लिन सिखाने से ही डिसिप्लिन आता है, बट उसको प्यार से समझाएंगे तो ही पेरेंट आपकी बात मानेंगे। इसलिए ये कुछ चीजें आप हमेशा पेरेंट्स के साथ जरा बात करके, क्योंकि ये जो है ना, पैंडेमिक के बाद अभी 1 ही साल खत्म हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के पढ़ाई की आदतें बदल गई हैं, बिगड़ गई हैं, बदल गई हैं। पेरेंट्स कुछ मदद करते हैं, कुछ मदद नहीं करते। कोविड के टाइम घर में पढ़कर क्या उनको अच्छा लगा या बेकार लगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो परेशान हो गए और आप स्कूल में भेजकर शांत हो चुके हैं। तो उनको याद दिलाना पड़ेगा कि घर में बच्चे को बिठाने से अच्छा है कि स्कूल में भेजें, ताकि आप उसका ध्यान रखें। टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या क्या में पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, पूछिए आप क्या क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ आप प्रोजेक्ट दोगे तो मैं प्रोजेक्ट करूंगा, लेकिन कम से कम बच्चा घर में जब पढ़ता हो तो टीचर, माँ देख तो सकती है ना, पापा देख तो सकते हैं ना कि रीड कर रहा है कि नहीं जोर से, या 10 सम टीचर ने बोला तूने 10 सम किया, कहाँ किया दिखाओ जरा। क्या पेरेंट्स को लगता है कि उनके कंट्रोल से बाहर है सिचुएशन, ये भी उनसे पूछिए। तो यानी मामला संगीन है, और उनको क्या तरीका बेस्ट लगता है ये भी आप उनसे पूछिए, बहुत जरूरी है। मेरे पास एक वीडियो है, मैं दिखाना चाहूंगी आपको, आप प्लीज इसको सुनिएगा। सुनाई दे रहा है? प्लीज राइट यस और नो। ध्यान से सुनिए। Thank you for coming to Kelly's conference. I appreciate it.
Of course, I wouldn't miss it. I always want to hear how Kelly's doing in her classes. Well, I could go on and on about how glad I am to have Kelly in my class. She is just such a joy to teach. Thank you, that is so nice to hear. She comes to class prepared and ready to learn every single day. When I'm teaching, she pays attention and takes detailed notes. She's always on task and responsible. I know I can depend on Kelly. That's great. How is she getting along with her classmates? Is she social? She's always been pretty shy. So I worry that she might have trouble making friends. I have noticed she's a bit shy, but she has had no trouble making friends. Her classmates often ask her for help with classwork, and she's always willing to help them. I see her at lunch with a small group of friends, and they seem to be laughing and getting along. It looks to me like she is doing well socially. And what about her grades? Is she doing well on her tests and quizzes? She does an outstanding job on her schoolwork. I can tell she is working hard and studying. She often gets perfect scores on her quizzes and tests. She's a very smart girl. Her current grade in this class is 99%. Wow, good for her. Yes, I've been very impressed with her. Well, I appreciate all of the positive feedback. I can't wait to go home and tell Kelly how proud I am of all her hard work. Yes, she deserves it. And whatever you're doing as a parent, keep it up. You're doing a great job. That's so nice of you to say. I try to help Kelly whenever I can, but really she has always been driven to succeed. I give her all of the credit. Thanks again for stopping by. Thank you for teaching Kelly and her classmates. I know she really enjoys your class. Have a great evening. Thanks, you too. आपने देखा कम्युनिकेशन कितना स्मूथ था। पेरेंट ने सब कुछ पूछा और टीचर के पास हर चीज का जवाब था और पॉजिटिव रिस्पांस था और इतने अच्छी तरीके से टीचर ने पेरेंट को बोला कि आपके लिए भी मुझे तारीफ, आपको भी मुझे तारीफ देनी पड़ेगी, आपका जो योगदान है कुछ कम नहीं था, इसलिए बच्ची बहुत अच्छा कर रही है क्लास में। और बच्ची का ओवरऑल ऑब्जर्वेशन टीचर ने भी किया है, दोस्त भी बनाती है, शाई है लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके दोस्त नहीं है, काम भी बहुत अच्छा करती है, खुद से भी काम करती है, घर से काम करके आती है, बहुत बेहतर काम है। तो पेरेंट खुश होता है कि हाँ मैं जरूर मदद करती हूँ लेकिन मेरी बच्ची भी आपके क्लास को बहुत एंजॉय करती है। देखो टू वे हो गया, तारीफ दोनों तरफ से हो गया, राइट? पेरेंट की भी थोड़ी तारीफ कीजिए। Thank you for taking the time to meet with me today. I really wanted to speak with you about Owen's behavior in class and his grades. Thank you for reaching out to schedule this meeting. I've been meaning to contact you as well. I was definitely not pleased when I saw Owen's last report card. Yes, I think he's capable of doing so much better in my class. I agree. Does he pay attention when he is in class? Well, actually, this is one of the biggest reasons I wanted to speak with you. Owen's classroom behavior has really been a problem. He doesn't pay attention when I'm teaching, and he often tries to distract his classmates. I try to separate him from his friends, but then he just yells across the room at them. I ask him to stop yelling, and this usually gets him to calm down for a few minutes. He becomes a little more focused and less talkative. That's good, I guess, but I wish he would just behave in the first place. Yes, I agree. I was thinking he might respond well to a reward. Like 15 extra minutes of recess on Fridays for the entire class for good behavior. इसमें एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, टीचर बीच में बोलती है कि मैं भी वापस बच्चे पे चीखती हूँ तो थोड़ी देर के लिए बच्चा शांत हो जाता है। यानी टीचर ने पहले से ही बड़े टैक्टफुली बता दिया है कि मैं बच्चे को डांटा करती हूँ, आप बुरा मत मानना। अब पेरेंट क्या बोलते हैं, हाँ सही बात है लेकिन पहले मर्तबा ही अगर बच्चा सुन लेता है तो ये दिक्कत होगी ही नहीं ना।
और टीचर क्या बोलती है, हाँ मेरी बात तो सुन लेता है लेकिन मुझे डांटना पड़ता है। तब टीचर बोलता है कि हाँ ये बात भी आपकी सही है, पहली मर्तबा में अगर बच्चा सुन लेता है तो फिर ये करने की जरूरत नहीं होती। यानी टीचर ने अपना बेल निकाल लिया, डांटा भी हो तो पेरेंट गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि पेरेंट भी समझ गया बच्चा शांत नहीं है। अब टीचर अपने तरीके बता रही है, शेयर करिए माँ बाप के साथ, तो आप सुनिएगा। इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। behavior. I think he might be motivated by this. What do you think? I think that's a great idea. He loves recess. Perfect. But we need another plan to help his grades. Yes. He needs to pass this class if he wants to play on the basketball team. Well, that should help motivate him. Also, I offer extra help to students who fall behind in the morning before school. I think Owen would really benefit if he came in for help. That would be amazing. Thank you so much. I think that would really help him. Can you get him to school early on Mondays and Thursdays at 8:15? That's not a problem at all. I'll just drop him off on my way to work. Perfect. I think he can really improve if he just puts in a little more effort and focuses more in class. Agreed. I'll talk to him about the new plan tonight. He might not be excited about getting to school early, but if he wants to be able to play basketball, he has to get his grades up. That's true. Well, I appreciate everything you're doing to help Owen improve. It's my pleasure. I want him to succeed and I know he can do better. Me too. Thank you. Thanks for coming in to chat today. अब आपने सुना होगा यहाँ टीचर क्या बोलती है कि मैं 15 मिनट उसको रिसेस टाइम देने को तैयार हूँ, यानी बच्चे को जो पसंदीदा चीज है वो देने को तैयार है, टीचर एडजस्ट करने को तैयार है। तो पापा भी बोलते हैं कि बच्चे को बास्केटबॉल क्लास बहुत पसंद है, तो अगर मैंने उस पर रोकथाम लगा दी या उसको मैंने एक इंसेंटिव के तौर पे यूज किया तो बच्चा मेरी भी बात सुनेगा। तो टीचर बोलती है हाँ ये भी अच्छी बात है। और दूसरा, टीचर एक्स्ट्रा क्लास तो लेती है, स्कूल पहले जल्दी पहुंच ही जाती है या दोपहर को एक्स्ट्रा रहती भी होगी, तो अगर बच्चे के पेरेंट को बताएं कि आप चाहो तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए भेज सकते हो, मैं इस दिन एक्स्ट्रा क्लास लेती हूँ, तो पेरेंट को भी लगेगा चलो टीचर इतना मेहनत करती है तो मुझे भी करना चाहिए। और देखो टीचर मेरे बच्चे के बारे में क्या सोचती है कि बच्चा जरूर बेहतर हो सकता है। हर पेरेंट को ये एक दिलासा है कि बच्चा बेहतर हो सकता है, भले ही ना हो, बहुत कम डिग्री बच्चा बेहतर हो, लेकिन वो फैक्टर कि आपने उसको इन्वॉल्व किया, पेरेंट को इन्वॉल्व किया और ये बताया कि आपका बच्चा अच्छा कर सकता है, उसी में आधा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। Hello? ये Hello, तीसरा केस। is this Mr. Thomas? Yes. Hi, this is Mrs. Brown, Lindsay's mom. Is this a good time to chat? Sure. How can I help you? Well, Lindsay appears to be very sad at home lately. She has no interest in school anymore, and I feel like she isn't making any progress in her classes. This isn't normal for her. She is usually a happy kid who has always enjoyed school, but not anymore. I'm sorry to hear that. I was wondering if you have noticed any behavior changes at school, or any sudden changes in her schoolwork? Yes, I noticed she had a tough time on her past few tests. She also seems a bit more reserved lately in class. Yes, she is acting more reserved at home as well. She used to be more talkative and outgoing, but now she rarely talks to us, and she spends most of her time in her room. She won't say much, but she hints that she is getting bullied by a classmate. She mentioned that a girl named Kimberly has been making fun of her. Do you ever see Kimberly talking to her in class? She does sit near Kimberly in class. I haven't noticed them talking at all. Apparently, Kimberly has been calling Lindsay names and making mean comments about the way Lindsay looks. I am so sorry to hear this. Lindsay has been miserable lately, and I think it's because of this bullying. I was wondering if there was any way you could help me make things better for Lindsay. Of course.
I'll talk to Kimberly and see if I can get her to stop this rude behavior. It's completely unacceptable. Thank you. And can you tell me if Lindsay has other friends to talk to in class? She does. She hangs out with a nice girl named Michelle. Could you change her seat so she sits next to Michelle? Sure, I think that would be helpful. Is there anything else you think would help? I can talk to Lindsay if you'd like. I can let her know that this is wrong and I'm here to help her. I think Lindsay would appreciate that. Thank you. I was so confused about how to help, but I think I feel better now. Please keep me posted if you notice anything else going on with Lindsay in class. Of course. I will let you know if I see anything out of the ordinary. And keep me informed as well. If there is more that I can do, I'll be glad to help. Thank you. I appreciate it. And I'm sure Lindsay will appreciate all of the support too. You know, the best part about this particular part is यहाँ टीचर नहीं जानता है कि बच्चे के साथ बुलिंग हो रहा है. यहाँ पेरेंट पहले पहचान रहा है कि बुलिंग हो रहा है, लेकिन ना तो पेरेंट ने टीचर पे हावी होकर बोला आपको पता नहीं था कि आप किस किस्म के टीचर हो. लेकिन टीचर इतना जरूर जानता है कि बच्चे के साथ कौन कौन बैठता है. बच्ची थोड़ी क्या कहते हैं आजकल थोड़ी झेपती है, काम करने में थोड़ी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है उसकी, कुछ अजीब सा बिहेव करती है. ये सब टीचर ने ऑब्जर्व किया, लेकिन बुलिंग ऑब्जर्व नहीं किया. लेकिन जैसे ही पता चलता है, टीचर सारे सुझाव लेता है कि मैं जो बच्चा बुली कर रहा है उसको आपकी बच्ची के साथ, दोनों के साथ बात करूंगा, और जो आप चाहते हो कि बच्चे का सीट बदल दें, मैं उस पर भी काम करूंगा. लेकिन और भी मुझसे कुछ आप अपेक्षा रखते हो तो जरूर बताइएगा. आई विल बी रेडीली डूइंग इट. ये in a way the teacher has said that look, I'm sorry, I did not recognize that this is a problem, but I'm ready to take care of it. जैसे पेरेंट को लगता है कि ये टीचर मेरे साथ है, तो पेरेंट भी क्या बोलती है कि हाँ भाई, थैंक यू सो मच. अगर मुझसे कोई कुछ आप अपेक्षा रखते हो तो आप मुझे भी बताइएगा. एज अ पेरेंट मैं भी हेल्प करना चाहूंगी. देखो किस तरह से दोनों सॉल्व हो गया. राइट. सो जरूरी क्या है? एम्फसाइज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट्स को सबसे पहले ये जताया जाए कि आप बहुत ज्यादा अहम हो बच्चे की जिंदगी में और हमारे लिए भी. दूसरा, कम्युनिकेशन अर्ली किया जाए और बीच बीच में किया जाए. साल के अंत तक वेट ना करें. हमेशा थोड़ा एडिशनल कांटेक्ट और मीटिंग्स अवेलेबल करें. जैसे मेरे स्कूल में 4 पीटीएम हम लोग अरेंज करते हैं साल में. इसके अलावा हर वेडनेसडे थोड़ा टाइम पेरेंट्स मिल सकते हैं टीचर्स को, क्योंकि उनके कुछ कुछ इश्यूज होते हैं. जैसे मेरे घर में शादी है, मैं अपने बच्चे को टेस्ट के टाइम नहीं भेज सकती, तो उसका तो मिस हो जाएगा. कुछ तरीका है बच्चा उस या क्लासेस जो मिस कर रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए, जो भी है. देयर आर सो मेनी सच क्वेश्चंस. दूसरा, रिटन कम्युनिकेशन भेजते वक्त मेक श्योर कि आपकी भाषा रूड ना हो, हार्श ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी को उस कम्युनिकेशन से पेरेंट जज करता है. दूसरा, स्कूल का एक कम्युनिकेशन पॉलिसी होना चाहिए. जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो पूरा स्कूल केवल व्हाट्सएप करे. अगर एक ईआरपी सिस्टम है तो केवल ईआरपी करे. होमवर्क के लिए अगर आपने ईमेल रखा है तो ईमेल करे. 3-4 चीजें लेके रखेंगे तो पेरेंट कंफ्यूज होता है कि जाना किधर है, देखना क्या है, चेक क्या करना है. और पेरेंट्स के साथ बात करने का तरीका उसको थोड़ा बेहतरीन कीजिए. जो नहीं करना चाहिए वो भी हम बता देते हैं. थोड़ा अथॉरिटेटिव टॉक. मैं टीचर, आप पेरेंट, आपको कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है. जैसे ही आप ये करते हैं, पेरेंट को आपसे एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है. इसलिए थोड़ा ह्यूमन बीइंग जैसा बिहेव करें. पेरेंटल रेस्पॉन्सेज, जब पेरेंट का नेगेटिव रेस्पॉन्सेज आता है तो हम उसको थोड़ा निग्लेक्ट करते ही हैं, लेकिन पेरेंट थोड़ा मदद मांगता है, उसको निग्लेक्ट करना ऐसा कभी मत कीजिए. इसलिए इसको लिखा है डोंट. तीसरा, लिमिट कम्युनिकेशन टू. आप केवल नेगेटिव चीजों को बताने के लिए कम्युनिकेशन रखेंगे तो वो गलत बात है. पॉजिटिव चीजें के लिए भी कम्युनिकेशन किया कीजिए. फोन करके बोलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी बेटी इतना अच्छा डांस करती है, इतना अच्छा बोली है, मैं बहुत खुश हूं कि वो मेरे क्लास में पढ़ती है. राइट. देन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज. इंग्लिश लिखते वक्त कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में लिखेंगे. बेचारे, इंग्लिश सबकी मातृभाषा तो है ही नहीं. इंडिया में किसी की भी मातृभाषा नहीं. इट इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज. इसलिए अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखेंगे तो जो आपका जो उद्देश्य था वो चलेगा नहीं, होगा नहीं, साक्षात्कार नहीं होगा. तीसरा, अपने कम्युनिकेशन को केवल 1 या 2 माध्यम से किया कीजिए. मैंने जैसे पहले कहा, 3-4 माध्यम रखेंगे तो परेशान हो जाएंगे आप. और कोई तरीका नहीं है, लेकिन कस्टमर सेंट्रिक जताने की कोशिश कीजिए, यानी आप अहम हो.
ये अगर आप जताएंगे तो पेरेंट खुश होगा। अगर आप चाहते हो तो आप एक क्विज खेल सकते हो, नहीं तो आई थिंक कम आउट ऑफ इट। Let us not play because I think it's already 5:01. I don't want to waste your time. So it's already too late in the day. So let's see, where can I see the pause sharing? Yeah, stop. So I'm back to this. I have already finished off my session. If there's any doubt that you have, let me know. Otherwise, that's it. Yeah, somebody had a few questions actually. They said that sometimes parents, they come with that attitude. Some of them are very rich. They feel that they have purchased you, but that doesn't mean you tell them that, okay, if you had the money, can you control it? My intention is to help the child. If you are cooperative, I can make a difference. But if you are having this attitude, I will not be able to help. What do you want? You really want to make it really bad or you want to help out? जैसे आप ये बात करेंगे, पेरेंट थोड़ा सा हो जाएगा। बड़े सारे तरीके हैं। हम घर पे अपनी सास को मैनेज करते हैं, अपने हस्बैंड को मैनेज करते हैं, अपनी बीवी को मैनेज करते हैं, भाई बहन को मैनेज करते हैं, सबका मूड मैनेज करते हैं, तो हम पेरेंट का भी मूड मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है, पेरेंट नहीं है जो सुनेगा नहीं, थोड़ा सा अपना टैक्टिक चेंज करना होता है। लेकिन जैसे ही टैक्टिक चेंज किया और दोस्ती बना ली, दोस्ती यानी एक बॉन्ड बना लिया, फिर देखना आपका काम साल भर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ और है जो जहां मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं तो आई थिंक आई विल देन लीव द सेशन। थैंक यू सो मच। मैडम, कैन आई लीव? Thank you, ma'am, for answering those questions and for the great presentation. It was a pleasure to have you with us. So this concludes the webinar, ma'am. You can leave. Thank you. Thank you. Okay.